Welcome, my dear students. You are studying with ByPS Academic Solutions. Today, we will solve a case study based on AP questions of 4 marks of CBSE board exam. Question number 2. Cable cars at hill stations are one of the major tourist attractions. On a hill station, the length of cable car ride from base point to topmost point on the hill is 5,000 meter. Poles are installed at equal intervals on the way to provide support to the cables on which car moves. तो मैंने एक सिंबॉलिक फिगर बनाया है। ये बेस पॉइंट है, ये केबल कार है, ये टॉप पॉइंट है। बेस पॉइंट और टॉप पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 5,000 मीटर। ये फर्स्ट पोल, सेकंड पोल, थर्ड पोल, फोर्थ पोल, डॉट डॉट डॉट। बीच में पोल्स मैंने नहीं दिखाए हैं। ये 10th पोल, फिर डॉट डॉट डॉट, बीच के पोल नहीं दिखाए हैं। फिर ये 25th पोल, डॉट डॉट डॉट, बीच के पोल नहीं दिखाए हैं। ये लास्ट पोल है। ये लास्ट पोल और टॉप के बीच की डिस्टेंस 300 मीटर है। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम बेस पॉइंट इज 200 मीटर and subsequent poles are installed at equal intervals of 150 meters. इन पोल्स के बेस पॉइंट से फर्स्ट पोल की डिस्टेंस 200 मीटर, लास्ट पोल से टॉप की 300 मीटर, पोल्स के बीच की 150 मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर्स. So further, the distance of last pole from the top is 300 meter. Based on above information, answer the following questions using arithmetic progression. Find the distance of 10th pole from the base. Find the distance between 15th pole and 25th pole. Find the time taken by cable car to reach 15th pole from the top if it is moving at the speed of 5 meter per second and coming from top. And or third B, find the total number of poles installed along the entire journey. ये क्वेश्चन CBSE 2025 में आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हम 10th पोल की डिस्टेंस निकाल ली हैं। सेकंड क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन 15th पोल एंड 25th पोल की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो इसमें हम 15th पोल की डिस्टेंस निकालेंगे और 25th पोल की डिस्टेंस निकालेंगे और 25th में से 15th पोल्स की डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी बिटवीन 15th पोल्स एंड 25th पोल्स. Find the time taken by cable car to reach 15th poles from the top if it is moving at the speed of 5 meter per second and coming from top. तो हम टॉप से 15th पोल की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर जो है उसकी स्पीड दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके वी विल कैलकुलेट द टाइम. And here find the total number of poles installed along the entire journey. तो इसमें हम जो है हमारा जो an is equal to a plus n minus 1 multiplied by d फॉर्मूला यूज़ करके नंबर ऑफ पोल्स निकालेंगे. तो अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन. The distance of first pole from base point B is 200 meter, that is a is equal to 200 meter. Subsequent poles are installed at equal intervals of 150 meter. Distance of second pole B is equal to 200 plus 150 is equal to 350 meter. Distance of third pole from B is equal to 350 plus 150 is equal to 500 meter. Distance of fourth pole from B means base point, is equal to 500 plus 150 is equal to 650 meter. These distances 200, 350, 500, 650 are in AP with common difference D is equal to
150 मीटर। डिस्टेंस ऑफ 10th पोल इज इक्वल टू A10 हमको फाइंड आउट करना है। सो A10 इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। नाउ सो पुट ऑल वैल्यूज। A10 इज इक्वल टू 200 प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 150 इज इक्वल टू 200 प्लस 150 से मल्टीप्लाई कर दिया 1500 माइनस 150। 200 में से 150 माइनस किया तो 50 आया, 50 इसमें ऐड कर दिया तो A10 इज इक्वल टू 1550 मीटर। Therefore distance of 10th pole from base point is 1550 मीटर। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। Second part, distance between 15th pole and 25th pole. So we will find out the distance of 15th pole and 25th pole. उसके बाद जो है 25th pole की डिस्टेंस में से 15th pole की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। Here A is equal to 200 meter and D is equal to 150 meter. So A15 is equal to 200 plus 15 minus 1 multiplied by 150 हमारा AN फॉर्मूला इज इक्वल टू 200 प्लस 150 का मल्टीप्लाई कर दिया 2250 माइनस 150। सो A15 इज इक्वल टू 200 में से 150 माइनस किया 50 और 50 इसमें ऐड कर दिया तो 2300 मीटर। नाउ वी विल कैलकुलेट A25 is equal to 200 plus 25 minus 1 multiplied by 150. So is equal to 200 plus 25 में से 1 माइनस किया 24 multiplied by 150. So 825 is equal to 200 plus इनका मल्टीप्लाई किया 3600 is equal to दोनों को ऐड कर दिया 3800 मीटर। Now the distance A25 minus A15 is equal to 3800 minus 2300 is equal to 1500 meter. Therefore distance between 15th pole and 25th pole is 1500 meter. Now we will do the next part. Third A. The distance of last pole from top is 300 meter. To find the time taken by cable car to reach 15th pole from the top. So we will find out the distance from the top of the 15th pole. So distance of 15th pole from top is equal to, इसको हमने मान लिया Tn is equal to A plus N minus 1 multiplied by D. सो T15 इज इक्वल टू यहाँ पर टॉप से लिया है इसलिए ए की वैल्यू 300 प्लस 15 माइनस 1 और डी वही सेम रहेगा 150। हियर ए इज इक्वल टू 300 डी इज इक्वल टू 150। सो T15 इक्वल टू 300 प्लस ये 1 माइनस कर दिया तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 150। सो T15 इज इक्वल टू 300 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 2100 दोनों को ऐड कर दिया तो 2400 मीटर। अब स्पीड ऑफ केबल कार इज गिवन 5 मीटर पर सेकंड। सो टाइम इज इक्वल टू 2400 अपॉन 5 बिकॉज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको कैलकुलेट किया तो आ गया 480 सेकेंड। Thus time taken by cable car to reach 15th pole from the top is 480 सेकेंड। अब हम करेंगे और वाला क्वेश्चन थर्ड बी। टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पोल्स इंस्टॉल्ड अलोंग द एंटायर जर्नी। अगर आप जो बेस पॉइंट पर खड़े हैं
तो वहाँ से लास्ट पोल की डिस्टेंस जो है हम कैलकुलेट करेंगे या कंसीडर करेंगे, क्योंकि लास्ट पोल के बाद आगे टॉप तक कोई पोल नहीं लगा है। इसलिए डिस्टेंस ऑफ लास्ट पोल फ्रॉम बेस पॉइंट बी इज 5000 माइनस 300 इज इक्वल टू 4700 मीटर, बिकॉज लास्ट पोल से टॉप की डिस्टेंस 300 मीटर है, टोटल डिस्टेंस 5000 है, इसलिए माइनस 300 कर दिया इज इक्वल टू 4700 मीटर, दैट इज एल इज इक्वल टू 4700 मीटर. Now we will apply the formula En is equal to A plus n minus 1 into D. So 4700 is equal to 200 plus n minus 1 multiplied by 150. So 4700 minus 200, 200 को लेफ्ट में ले गए is equal to n minus 1 150. So 4500 इसको माइनस कर दिया is equal to n minus 1 multiplied by 150. अब 150 को लेफ्ट साइड ले गए तो 4500 अपॉन 150 is equal to n minus 1. This implies n minus 1 is equal to 30. 150 से इसको कट कर दिया तो n is equal to 1 को हम राइट साइड में ले गए, 30 plus 1 is equal to 31. Hence, number of poles installed along entire journey is 31. यदि इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखिए. इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वह भी कमेंट्स में लिखिए, वह मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा. इसके साथ ही आप सजेशन दे सकते हैं कि आगे वीडियो किस चैप्टर या किस टॉपिक पर बनाई जाएं, साथ ही सिस्टम या मेथड को और कैसे इम्प्रूव किया जाए वह भी सजेशन दे सकते हैं. इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.